Hello students, in this video we are studying chapter number 7 of your business studies book, that is directing. Number 1 is meaning and introduction of directing. Directing function of management is concerned with the instructing, guiding, inspiring and motivating the employees in the organization. यहाँ 4 वर्ड्स आए हैं, इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना, इंस्पायर करना और मोटिवेट करना है एम्प्लॉयज़ को. इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन so that their efforts result in the achievement of the organizational goal. अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना चाहते हैं तो मैनेजमेंट को डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है. और डायरेक्टिंग फंक्शन में क्या क्या होता है? इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज. आफ्टर द स्टाफिंग फंक्शन द राइट पर्सन इज प्लेस्ड एट द राइट पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट एक्चुअल वर्क begins only when these person get instruction from their superior. Directing does not mean only the instruction, but it also includes supervising the employees then they perform while they performing the job, motivating them to perform more efficiently and leading them towards the achievement of the organizational goals. Here in this box different definitions given by different authors, like it is given, first definition is given by Ernest Dale. Directing is telling people what to do and seeing that they do it with their best ability or not. Another definition by Kuntz O'Donnell and William Newman's definition. So you can learn any one definition from it. Now next features and characteristics of directing function. Next जो अब दिया है आपकी बुक में वो दिया है टॉपिक features and characteristics of directing function. First feature is directing initiates action. Other function prepare a base or setting of action, that is how action has to be carried on on the directing initiate start action. By giving direction instruction the manager get work started in the organization. अभी तक जो फीचर पढ़े हैं उनमें ये जो मेन एक्शन जो उसके बाद स्टाफिंग के बाद जो मेन फंक्शन है वो है डायरेक्शन. डायरेक्शन में मतलब ये है कि जब तक आप किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे तब तक वो वर्क नहीं करेगा. तो डायरेक्शन का सबसे बड़ा फीचर ये है कि एक्शन शुरू इसी से होता है, मतलब वर्क शुरू इसी डायरेक्टिंग से ही होता है. Next, continuing function. Directing is a continuous process. A manager cannot just rest after issuing order and instruction. He has to continuously guide, supervise and motivate the subordinate. Continuing function है, अकेला इंस्ट्रक्शन देना डायरेक्शन नहीं है. इंस्ट्रक्शन देने के बाद प्रॉपर गाइडेंस, टाइम टू टाइम सुपरविजन देना एम्प्लॉयज़ को, सबॉर्डिनेट को, वो भी डायरेक्टिंग का ही पार्ट है. नेक्स्ट, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल. डायरेक्टिंग इज अ परवेजिव फंक्शन मीन्स टॉप, मिडिल, लो लेवल, सारे लेवल्स पर ये अप्लाई होता है. एवरी मैनेजर हैज़ टू सुपरवाइज, गाइड, मोटिवेट एंड कम्युनिकेट विद द सबऑर्डिनेट टू गेट थिंग्स डन. हाउएवर द टाइम स्पेंट इन डायरेक्टिंग इज कंपैरेटिवली मोर एट द ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट फीचर इज डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ये कहाँ फ्लो होती है? टॉप अथॉरिटी से बॉटम अथॉरिटी पे, मींस टॉप लेवल मैनेजमेंट से बॉटम लेवल. ऑब्वियस है जो टॉप लेवल मैनेजर है वो इंस्ट्रक्शन देंगे बॉटम लो लेवल मैनेजर्स को. डायरेक्शन आर गिवन बाय द मैनेजर टू देयर सबऑर्डिनेट. एवरी मैनेजर कैन डायरेक्ट हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट एंड टेक डायरेक्शन फ्रॉम द इमीडिएट बॉस. डायरेक्टिंग स्टार्ट्स from top and flows to the lower level. Performance oriented. Direction is a performance oriented. The main motive of direction is to bring efficiency in the performance. Next is human element. Directing function involves study and molding human behavior. It improves interpersonal relationship and it motivates the employee to work with their stability, with their ability. ये तो हुए डायरेक्टिंग के फीचर्स. अब नेक्स्ट टॉपिक जो बुक में दिया है वो दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन. फर्स्ट, टू इनिशिएट एक्शन. जो कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्स्ट पॉइंट है वही इस इंपॉर्टेंस का फर्स्ट पॉइंट बनेगा. नेक्स्ट, टू इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट. इन द ऑर्गेनाइजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर वर्किंग एट द डिफरेंट लेवल एंड डिफरेंट जॉब पोजिशंस. द एम्प्लॉयज may differ in their levels of authority and the type of job assigned, but all are interrelated to each other. वैसे तो अलग अलग एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनके वर्क अलग अलग होते हैं, पर जो उनका मेन टारगेट होता है वो एक ही होता है. इसी का उस टारगेट के कारण वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं. तो जो डायरेक्टिंग फंक्शन है उसके थ्रू जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन सब के एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं. नेक्स्ट, मीन्स ऑफ मोटिवेशन. डायरेक्टिंग फंक्शन डज नॉट मीन गिविंग ऑर्डर ओनली, बट थ्रू डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन द सुपीरियर ट्राई टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म विद देयर बेस्ट एबिलिटी. मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग. Directing function develops the feeling of belongingness and encourage employees to perform their best ability. Next, bring stability and balance in the organization. The directing function tries to create balance in the organization. Directing एक ऐसा फंक्शन है
जो हमारे जो सबॉर्डिनेट वर्क कर रहे हैं सुपीरियर के अंडर में और उनके बीच जो रिलेशन है उसको बहुत अच्छा भी बनाता है, और जो सबॉर्डिनेट का एक एटीट्यूड है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको चेंज भी करता है, मतलब उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, द सेल्समैन मे इंसिस्ट एंड रिडक्शन ऑफ प्राइस टू गेट मोर ऑर्डर्स, वेयर एज हाई ऑफिशियल आर अगेंस्ट द रिडक्शन, इट विल ब्रिंग डाउन रिड्यूस द टोटल रेवेन्यू. The directing function tries to balance both the attitude by instructing, guiding the salesperson to find out other means of increasing the sale. सेल्समैन कहता है कि अगर हम प्राइजेस को कम करेंगे तो सेल्स बढ़ सकती है, पर जो सेल्स ऑफिशियल जो हाई अथॉरिटी है, जो हाई ऑफिशियल्स हैं, वो ये बोलते हैं कि इससे कंपनी का रेवेन्यू कम हो जाएगा. तो अब ये दोनों के अलग अलग एटीट्यूड है, पर अगर हम डायरेक्टिंग फंक्शन को फॉलो करेंगे, उन्हें हमारे एम्प्लॉयज़ को वर्कर्स को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देंगे, तो हम एटीट्यूड को उनके चेंज कर सकते हैं. हम उनसे कह सकते हैं सेल्स पर्सन से कि आप कोई और तरीका ढूंढिए, कोई और वे ढूंढिए जिससे हम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सके. तो हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्टिंग फंक्शन है वो एक तरह से इट क्रिएट्स अ बैलेंस बाय इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉयज़ दैट देयर इंटरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट आर इन द मूव इन द सेम डायरेक्शन. To facilitate change, generally the employees hesitate in accepting the changes, but through directing function the changes can be implemented more easily, as while direction the superior guide the subordinate that the changes are better for them also. Generally जो हमारे employees होते हैं वो changes को apply use नहीं कर पाते, means accept नहीं कर पाते जल्दी. तो जो directing function है इसके थ्रू हम अपने employees को motivate कर सकते हैं कि वो changes को adopt करें, superior उनको guide कर सकता है regarding changes. अब नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक दिया है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. फर्स्ट इज सुपरविजन, सेकंड वन इज मोटिवेशन, थर्ड वन इज कम्युनिकेशन एंड फोर्थ वन इज लीडरशिप. इन दिस वीडियो वी विल रीड 2 elements deep, that is supervision and motivation. First element is supervision. The supervision means instructing, guiding, monitoring and observing the employees while they are performing jobs in the organization. जब कोई भी एम्प्लॉय अपना जॉब परफॉर्म करता है तो सुपरविजन का मतलब होता है उसे इंस्ट्रक्शन देना, उसको गाइड करना, उसको मॉनिटर करना और ऑब्जर्व करना कि वो वर्क वैसा परफॉर्म कर रहा है या नहीं. द सुपरविजन वर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 words, super and vision. Super means over and above and vision means seeing. So the supervision means seeing the activities of the employees from over and above. नेक्स्ट टॉपिक इज गिवन इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन और फंक्शंस ऑफ अ सुपरवाइजर. एक सुपरवाइजर को क्या क्या वर्क करना पड़ता है या सुपरविजन के क्या क्या फंक्शंस हैं. फर्स्ट, इंश्योर इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शन. द सुपरवाइजर मेक श्योर ऑल द इंस्ट्रक्शन आर कम्युनिकेटेड टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय. सबसे पहले तो जो सुपरवाइजर है उसको ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल जो इंस्ट्रक्शन वो दे रहा है वो प्रॉपर कम्युनिकेट हुए हैं एम्प्लॉयज़ को या नहीं हुए हैं. Second is facilitates control. Controls means match between the actual and planned output. Planned और actual output के बीच में एक match होना चाहिए, वो controlling या control कहलाता है. Whenever the workers are under constant supervision or monitoring, then step by step check is kept, and if they are deviating from plan, then immediate instruction are issued by the supervisor. By this constant monitoring, the supervision function ensures strict control over the activities of the subordinate. जो subordinate जो superior है, जो means supervisor जो है, वो टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन देता रहे और जो डेविएशंस आ रहे हैं, जो मिस्टेक्स आ रहे हैं, उन पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देता रहे वर्कर्स को, मीन्स जो सबॉर्डिनेट उनके अंडर में काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस देता रहे. तो कंट्रोल, ये जो सुपरविजन की प्रोसेस है ये प्रॉपर प्रोसेस कहलाएगी और कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग होती रहेगी इसमें. नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. व्हेन द वर्कर्स आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड, देन दे ऑलवेज यूज द रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. अब सुपरविजन में क्या करते हो कि आप अपने एम्प्लॉयज़ पे नज़र रखते हो, एक तरह से उन्हें देखते रहते हो कि वो वर्क प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अब जब उन्हें पता है कि हमारे ऊपर कोई ना कोई हम पे नज़र रखे है तो वो रिसोर्सेज का भी बेस्ट पॉसिबल यूज़ करेंगे, मिनिमम वेस्टेज करेंगे. नेक्स्ट, डिसिप्लिन. द स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ द supervisor encourage the employees and the worker to be more disciplined in their activities. Under the guidance of supervisor, the workers follow fixed and strict timetable and execute the plan in the right direction. Next is feedback. The supervisor are directly dealing with the subordinates, so they are the best person to give feedback of the subordinate. क्या होता है, जो सुपरवाइजर होता है ना वो डायरेक्ट किसके उसमें रहता है, मींस डील करता है, वो किसको डील करता है, डायरेक्ट सबऑर्डिनेट को. सो ये सबसे अच्छा फॉर्म है फीडबैक लेने का कि सबऑर्डिनेट से हम डायरेक्ट जो है सुपरवाइजर डायरेक्ट फीडबैक ले सकता है. दे गिव देयर रिपोर्ट रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ एवरी वर्कर विच बिकम द बेस ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर द एम्प्लॉयज.
Next is improves communication. Supervisor issues instruction and order to all the subordinate and make sure that all these instruction and orders are clear to all the members. While playing the role of the linking pin or a mediator, the supervisor tries to remove the communication gap between superior and subordinate. जो supervisor होता है ना, वो मैनेजमेंट मीन्स जो कहना चाहिए जो मेन हेड है उसके और सबॉर्डिनेट के बीच में वर्क करता है सुपरवाइजर. तो सुपरवाइजर जो है एक तरह से मीडिएटर का काम करता है बिटवीन बोथ दैम एंड इट इम्प्रूव्स द कम्युनिकेशन. मैनेजमेंट से जो उसके पॉलिसी सजेशंस जो उसको मिलती हैं, जो प्लान्स मिलते हैं, उनको वो एग्जीक्यूट करवाता है सबॉर्डिनेट से, और सबॉर्डिनेट की जो भी सजेशंस या कंप्लेंट्स होती हैं वो सुपरवाइजर को मिलती हैं. फिर सुपरवाइजर किसको देता है? मैनेजमेंट को देता है. तो इससे कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होता है. Next, another point related to the function of supervisor or features of supervision is it motivates the employees and maintains group unity. Now, the second one element of the directing is the motivation. Motivation means will to work. इच्छा, काम करने की इच्छा है. Motivation can be defined as stimulating, inspiring and inducing the employees to perform to their best capacity. Motivation मतलब यही होता है कि हमारे जो employees हैं उनको inspire करना, induce करना कि वो बहुत अच्छे से काम करें, अपनी best capacity से work perform करें. Motivation is a psychological term which means it cannot be forced on to the employees. It comes automatically from inside the employees as it is the willingness to do the work. हम simple motivation को कुछ words में अगर explain करने बोलें तो ये कह सकते हैं कि motivation is the willingness to do the work. Motivation is the process of making subordinate to act in the desired manner to achieve the organizational goal. हमारे ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए सबॉर्डिनेट को मोटिवेट करना, उनको कहना चाहिए कि इंड्यूस करना कि वो इंस्पायर होकर काम प्रॉपर वे में करें. नेक्स्ट सम फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू द मोटिवेशन लाइक मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर्स. व्हाट इज मोटिव? मोटिव इज अ इनर स्टेट और डिजायर विच एनर्जीज एन इंडिविजुअल टू मूव और टू बिहेव टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल. मोटिव अराइजेज आउट ऑफ नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल. मोटिव क्या होते हैं? इनर स्टेट्स और डिजायर्स होती हैं जिनकी वजह से कोई भी एक इंडिविजुअल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए मूव करता है. It causes restless as he wants to fulfill his motive. For example, motive to earn induces an individual to search for the job. एक motive मतलब कह सकते हैं एक गोल. जैसे किसी पर्सन का मोटिव है कि उसे पैसे अर्न करना है तो उस मोटिव की वजह से तो वो जॉब सर्च करता है. नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन. इट इज द प्रोसेस बाय इंड्यूसिंग द पीपल टू परफॉर्म द बेस्ट एबिलिटी टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल और टू अकम्प्लिश द गोल. नेक्स्ट इज मोटिवेटर. मोटिवेटर आर द इंसेंटिव्स और टेक्निक यूज टू मोटिवेट द पीपल. लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं वो तरीके कहलाते हैं मोटिवेटर्स. अब ये कुछ टेक्निक्स भी हो सकती हैं या कुछ इंसेंटिव्स भी होते हैं. कॉमन मोटिवेटर यूज्ड बाय द मैनेजर आर इंक्रीमेंट, बोनस, प्रमोशन, रिकॉग्नाइजेशन, रिस्पेक्ट. ये मोटिवेटर्स हैं जिनसे कोई व्यक्ति काम करने के लिए और उत्सुक होता है या और मतलब फोकस बढ़ता है उसका काम के लिए. हियर सम कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ मोटिवेशन आर गिवन. दैट इज फर्स्ट, मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना. मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉयज. हम किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना मतलब उसको फोर्स नहीं कर सकते. ये उसके अंदर की फीलिंग है, डिजायर, एस्पिरेशंस हैं जिनके कारण वो काम करना चाहता है या काम बेस्ट मैनर में करता है. फॉर एग्जाम्पल, डिजायर टू हैव अ न्यू हाउस, रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइजेशन. तो ये इंटरनल फीलिंग्स ही हैं. मोटिवेशन. नेक्स्ट इज मोटिवेशन प्रोड्यूसेस goal oriented behavior. Motivation induces people to behave in such a manner so that they achieve their goal. Motivated person need no supervision, no direction. एक motivated person के लिए ना कोई supervision चाहिए होता है, ना कोई direction चाहिए होता है. वो अगर motivated है मतलब वो induce है work करने के लिए. He will always work in desired manner. For example, if a person has a motive to get promotion, so he will work efficiently to get the promotion. नेक्स्ट वन इज मोटिवेटर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. जो मोटिवेटर्स होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं. टू मोटिवेट एम्प्लॉयज मैनेजर यूज वेरियस मोटिवेटर्स. सम मोटिवेटर्स पॉजिटिव एंड सम आर नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव मोटिवेटर्स लाइक प्रमोशन, इंक्रीमेंट्स, बोनस, रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन, जिनसे उसका एक पॉजिटिव मोटिवेशन हो वो कहलाएंगे पॉजिटिव मोटिवेटर. बट इफ एम्प्लॉय डज नॉट इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस विथ पॉजिटिव मोटिवेटर्स देन द सुपीरियर will use negative motivator. Negative motivators such as warnings, issue of memo, demotion, stopping increment. These all are the negative motivator. अब negative motivator के fear से जो person है वो induce होगा work करने के लिए ताकि goal achieve हो सके. Next feature of motivation is a complex
complex process. Motivation is a complex or difficult task. In order to motivate people, a manager must understand various types of human needs. जो motivation है वो बहुत ही complex process है. Complex process क्यों है? क्योंकि हम सामने वाले को मतलब सामने वाले का हमें बिहेवियर समझना पड़ेगा ना कि ये किस चीज़ की इसको ज़रूरत है जिसको देने से ये मोटिवेट होगा काम करने के लिए. ह्यूमन नीड्स पर भी डिपेंड होता है मोटिवेशन. ह्यूमन नीड्स आर मेंटल फीलिंग्स विच आर कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली. इफ द मैनेजर मेजर दैम देन एक्यूरेटली देन दे ऑल्सो ऑफर एवरी पर्सन यूजेस डिफरेंट अप्रोचेस to satisfy their needs. Some get satisfied with the monetary incentives, some get non-monetary incentives for motivation, some with positive, some with negative. So it is not possible to make generalization in motivation. समझना बहुत मुश्किल है कि ये जो पर्सन है या जो सबऑर्डिनेट है वो किस चीज़ से मोटिवेट सबसे ज़्यादा होगा. Last point is given is that motivation is a dynamic and a continuous process. Motivation कैसी dynamic process भी है और एक continuous process भी है. अब यहाँ पे दिया हुआ है इंपॉर्टेंट टॉपिक मैस्लोज नीड्स हायरार्ची थ्योरी. इट इज़ द अब्राहम्स मैस्लो नीड्स हायरार्ची थ्योरी. जो अब्राहम मैस्लो थे इन्होंने नीड्स के बेसिस पे मोटिवेशन के कुछ स्ट्रक्चर फिक्स किया हुआ था. मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना एंड द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मोटिवेशन. To understand the needs of human being, we must learn Maslow's needs hierarchy theory. अगर हम ह्यूमन बीइंग की नीड्स को समझना चाहते हैं और यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की नीड्स को ही मोटिवेशन से कोरिलेट किया गया है अब्राहम मैस्लो की नीड्स हायरार्ची थ्योरी में. Needs or the desire is very important element in the motivation because employee get motivated only if their needs are fulfilled completely. Then it is not possible to motivate. If their needs are not fulfilled, then it is not possible to the employees to motivate them. And Maslow's have given a sequence of hierarchy of needs in the following way. अब human needs को एक proper way में बताया है, 5 steps में बताया गया है कि एक एक needs पूरी होती जाती है और employees motivate होते जाते हैं. First need is sociological needs. These needs include basic requirement for survival, maintenance of human life. The common sociological needs related to food, shelter and clothing. रोटी, कपड़ा और मकान, ये सबसे बड़ी प्राइमरी नीड्स है किसी भी ह्यूमन बीइंग की. जब ये सेटिस्फाई होंगी तो अब ह्यूमन बीइंग आगे की नीड्स के लिए बढ़ेगा. Next is safety and security needs. Once the present day sociological needs are fulfilled, then the people start thinking about their future as they want to secure their future by making sure that in future they also continue to satisfy their sociological needs. Under safety and security needs there are 2 categories. First is physical security, second one is economic security. Physical security में कोई भी ह्यूमन बीइंग किस बारे में सोचता है कि इलनेस है, एक्सीडेंट, फायर और इन चीज़ों से इनकी कैसे सिक्योरिटी होगी. और जो इकोनॉमिक नीड्स होती हैं उसमें वो फंड्स मेंटेन सेव करके रखता है कि फ्यूचर में अगर कभी उसको ज़रूरत पड़े तो सिक्योरिटी के तौर पे ये पैसा रहे. इस सेकंड स्टेप में आ जाएंगी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स. अब थर्ड नीड्स जो किसी भी ह्यूमन बीइंग की वो होती हैं सोशल नीड्स, बिलोंगिंगनेस की जो नीड्स होती हैं. इट मीन्स द नीड फॉर लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप. वंस द पीपल सेटिस्फाई देयर सोशियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स देन सोशल नीड्स बिकम्स मोर एक्टिव एंड टू फुलफिल द नीड्स द मैनेजर प्रेफर टीम वर्क, अरेंज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल गेट टुगेदर to get the employee motivated through social relationship. Next is esteem needs. These needs are related to the respect and recognition. When the above 3 needs are satisfied, then people are demanding respect for themselves in the group. अब जब ये 3 needs satisfy होंगी तो उन्हें अपनी respect चाहिए, एक recognition चाहिए ग्रुप में, तो esteem needs उनकी जनरेट होती हैं. ये fulfill होंगी तो लास्ट नीड्स आ जाएंगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. द नीड्स रेफर टू रियलाइजिंग और रीचिंग टू द एम ऑफ योर लाइफ. अब उनका पर्सनल जो लाइफ का गोल है वो आ जाएगा. Once the employee became what he wants to become, it means satisfaction of his actualization needs. These needs include growth, self-fulfillment and achievement of goal. Here the structure of needs hierarchy theory is given. Abraham Maslow's needs hierarchy theory, sociological, safety, social, esteem and self-actualization needs are given. An organizational example and example of individual person is also given. You can see in your book. Here assumption of Maslow's needs hierarchy theory are given. Behavior of people depends upon their needs. Human behavior can be changed or motivated by fulfill their needs. Second, generally the needs follow the hierarchy starting from sociological needs. A satisfied need can no longer motivate a person. Only next higher level needs can motivate him. A person move to the next higher level need only when the lower need is satisfied. ये कुछ assumptions हैं मैस्लोस की needs hierarchy theory के जिनको assume करके ही उन्होंने ये 5 needs बताई हैं.
नेक्स्ट टॉपिक गिवन इन योर बुक इज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं, जो मनी के फॉर्म में दिए जाते हैं, वो पावरफुल होते हैं लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए. और जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं, जो मनी के अलावा अदर फॉर्म्स में दिए जाते हैं, दीज आर पावरफुल टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ एट द हायर लेवल. इंसेंटिव्स होते क्या है पहले वो पढ़ते हैं. इंसेंटिव्स कैन बी डिफाइंड एज अ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिवार्ड ऑफर टू द एम्प्लॉयज फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर इफिशियंटली. जो भी एम्प्लॉयज इफिशियंटली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं गोल को अचीव करने के लिए, उन्हें कुछ रिवार्ड दिए जाते हैं मनी के फॉर्म में और नॉन मनी के फॉर्म में, वो कहलाते हैं इंसेंटिव्स. इंसेंटिव्स कैन बी एक्स्ट्रा पेमेंट और समथिंग मोर द रेगुलर सैलरी और वेजेस. जो रेगुलर सैलरीज एम्प्लॉयज को मिलती है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाता है वो इंसेंटिव्स कहलाता है. Incentive act as a good stimulator or motivator because it encourages the employees to improve their efficiency level and reach the target. The common types of incentives are monetary incentives and non-monetary incentives. Monetary incentives, the reward or incentives which can be calculated in terms of money is known as monetary incentives. These incentives are offered to the employees who have more sociological, social and security needs in them. Active in them. The common monetary incentives are first pay and allowances. Regular payment in salary every year and grant of allowances act as a good motivator. In some organization, pay hikes, allowances are directly linked with the performance of the employees. उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे. जितना बेस्ट परफॉर्म करेंगे उतने ज़्यादा उन्हें हाइक्स मिलेंगे, उतने ज़्यादा उनको अलाउंसेस या एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेंगे. नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द organization to the employees as a common incentive for encouraging the employees for working efficiently. Under profit sharing schemes, generally for the companies to give fixed percentage of profit to their employees, and if the profit exceeds the percentage then the surplus profit is distributed. मीन्स यहाँ पे ये बताया गया है कि प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम में क्या होता है. एक जैसे बताया जाता है कि कंपनी का एक फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होता है कि जनरली वो इतना कमाती है. अगर इससे ज़्यादा कमाएगी तो एम्प्लॉयज़ को भी प्रॉफिट में शेयर मिलेगा. इससे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो मोटिवेट होते हैं और इफिशियंटली वर्क करने के लिए. नेक्स्ट इज को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन. शेयरिंग द प्रॉफिट डज नॉट गिव ऑनरशिप राइट टू द एम्प्लॉयज़. मैनी कंपनीज ऑफर शेयर इन मैनेजमेंट और पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट along with the share in profit to its employee as an incentives to get efficient working from the employees. अगर कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ से अगर ज़्यादा वर्क कराना चाहती हैं, मीन्स एफिशिएंट वर्क कराना चाहती हैं, तो उसके लिए वो प्रॉफिट शेयरिंग के अलावा उन्हें को पार्टनरशिप भी देती हैं. प्रॉफिट शेयरिंग में उन्हें क्या होता है, सिर्फ प्रॉफिट में शेयर मिलता है. और को पार्टनरशिप में कहना चाहिए कि वो एक तरह से जितने शेयर उनके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं एज एन इंसेंटिव्स, वो उतने से कंपनी के ऑनर बन जाते हैं. तो ये भी एक अच्छा बेटर इंसेंटिव है. नेक्स्ट इज बोनस. बोनस इज अ वन टाइम एक्स्ट्रा रिवार्ड ऑफर टू द एम्प्लॉय फॉर शेयरिंग हाई परफॉर्मेंस. एक बार दिया जाता है बोनस, जैसे दिवाली का बोनस है, होली का बोनस है, एक बार दिया जाएगा बस. जनरली व्हेन द एम्प्लॉयज रीच देयर टारगेट और एक्सीड्स द टारगेट देन दे आर पेड एक्स्ट्रा अमाउंट कॉल्ड बोनस. बोनस इज ऑल्सो गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्री ट्रिप्स टू द फॉरेन कंट्रीज, vacation or gold etc. Some companies have schemes of offering bonus during the festival time like Diwali, Christmas bonus, New Year etc. Next one is commission. Commission is the common incentive offered to the employees working under sales department. जो sales department में work करते हैं ज़्यादातर उनको दिया जाता है commission. Generally the salesperson get the basic salary and along with this commission on every sales order. The income of the salesperson is directly linked with the efforts put in by them. जितना ज़्यादा वो efforts करेगा सेल को इंक्रीज करने के लिए, मतलब जितनी यूनिट्स वो सेल करेगा तो उसको उसके हिसाब से सैलरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा, वो कहलाता है कमीशन. तो इससे जो हमारा सेल्समैन है वो मोटिवेट होगा वर्क करने के लिए. Next is productivity linked with the wage incentives. There are certain wage rate plans which offer higher wages for more productivity. For example, under differential piece wage system, efficient workers are paid higher wages, whereas compared to the inefficient worker. To get higher wages, the workers perform more efficiently. ये आपने second chapter में पढ़ा था, differential piece wage rate system. Next is retirement benefit. Some organization offer retirement benefit such as pension, provident fund, gratuity to motivate the employees. These incentives are suitable for the employees who have security and safety needs. Last one is perks, fringe and benefits and perquisites. It's referred to the special benefits such as medical facility, free education for children,
housing facility. These come in the fringe benefits. These benefits are over and above the salary. These extra benefits are related with the performance of the employee. Next, last one is non-monetary or non-financial incentives. These are more powerful for the higher level of employees. Money is not only the motivator. The employees who have more of esteem and self-actualization needs. जो 3 नीड्स हैं, बेसिकली जो मैस्लो की थ्री नीड्स हैं, वो तो मॉनेटरी इंसेंटिव से फुलफिल हो जाएंगी, पर जो हायर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स की ज़रूरत होती है, जिनसे वो अपनी एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को पूरा करते हैं. द इंसेंटिव्स विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी आर नोन एज नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स. जनरली पीपल वर्किंग एट हाई जॉब पोजिशन और हाई रैंक गेट satisfied with the non-monetary incentives. The common means of non-monetary incentives are: first, status. Status refer to the rank, authority and responsibility and recognition and prestige related to the job. जॉब से रिलेटेड जो रैंक होती है, अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके बेसिस पे स्टेटस फिक्स होता है. बाय ऑफरिंग हायर स्टेटस और रैंक इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर कैन मोटिवेट एम्प्लॉयज having esteem and self-actualization needs active in them. Next one is organizational climate. It refer to the relation between superior and subordinate. जब हम climate की बात करते हैं, वो भी organization का, तो हम superior और subordinate के बीच के relationship की बात करते हैं. There are characteristics which describes an organization. These characteristics have direct influence over the behavior of the member. A positive approach adopted by the manager creates better organizational climate, whereas negative approach may spoil the climate. So employees always get motivated in the healthy organizational climate. So organizational climate monetary तो नहीं है, non monetary है. Next is career advancement. Manager must provide promotional opportunities to the employees. Whenever there are promotional opportunities, employee improve their skill and efficiency with the hope that they will promoted at high level. कैरियर एडवांसमेंट उन्हें जितना ज़्यादा लगेगा, जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रमोशन की मिलेंगी, उतना ज़्यादा वो अपने स्किल्स को, अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे और अल्टीमेटली उसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा. प्रमोशन इज़ वेरी बिग मोटिवेटर विच इंड्यूसेस पीपल टू परफॉर्म विद देयर बेस्ट लेवल. नेक्स्ट वन इज जॉब इनरिचमेंट और असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग टास्क. एम्प्लॉयज़ गेट बोर्ड बाय परफॉर्मिंग रूटीन. जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जनरली वो रूटीन जॉब परफॉर्म करते करते बोर हो जाते हैं. दे एन्जॉय डूइंग जॉब्स विच ऑफर फ्रॉम वैरायटी और अपॉर्चुनिटी टू शो देयर स्किल्स. बाय ऑफरिंग चैलेंजिंग जॉब, ऑटोनॉमी टू परफॉर्म द जॉब, इंटरेस्टिंग जॉब्स, एम्प्लॉयज़ गेट सेटिस्फाइड एंड दे आर मोटिवेटेड. इंटरेस्टिंग, इनरिच्ड एंड चैलेंजिंग जॉब इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड मोटिवेटर और स्टिमुलेटर. जॉब इनरिचमेंट करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो रूटीन जॉब परफॉर्म करते करते बोर हो जाते हैं. तो अब उन्हें क्या चाहिए कि उन्हें नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, न्यू टास्क मिले, तो उससे उनका स्किल भी इम्प्रूव होगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ से एफिशिएंसी भी आएगी. नेक्स्ट इज एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन. रिकॉग्नाइजेशन मीन्स गिविंग स्पेशल रिगार्ड और रिस्पेक्ट विच सेटिस्फाई द ईगो ऑफ द सबऑर्डिनेट. ईगो सेटिस्फैक्शन इज वेरी गुड मोटिवेटर. वेन एवर द गुड एफर्ट्स और पॉजिटिव एटीट्यूड आर शोन बाय द सबऑर्डिनेट, देन इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुपीरियर इन पब्लिक और इन द प्रेजेंस ऑफ अदर एम्प्लॉयज़. अगर कभी सबऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड शो करता है, मीन्स एक वर्क वो बहुत अच्छा करता है, उसका ईगो सेटिस्फाई होगा, वो तभी ऐसा करेगा. तो जो हमारा सुपीरियर है उसको पब्लिक की प्रेजेंस में या अदर एम्प्लॉयज़ की प्रेजेंस में उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए. इससे क्या होगा, उनका एम्प्लॉय जो रिकॉग्नाइजेशन होगा ना, तो वो मोटिवेट होंगे कि आगे भी हमें कुछ बेस्ट करना है. और अगर वो मिस्टेक करते हैं तो उसको कभी भी पब्लिकली उसको शो नहीं करना है, अदर एम्प्लॉयज़ के सामने कभी नहीं बताना है, बल्कि उन्हें अलग से प्राइवेट में कैबिन में अलग से बुला के उन्हें बताना है, ताकि वो दोबारा से वो मिस्टेक ना करें. तो ये अगर हम फॉलो करेंगे तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे सबऑर्डिनेट हैं, वो प्रॉपरली मोटिवेट होंगे. ये नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है. Next is job security. Job security means lifetime bonding between employee and organization. Job security means giving permanent letter, confirmation letter regarding their job. Job security ensure the safety and security need, but it may have negative impact. Once the employee gets job secured, they lose their interest in the job. अब इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इंटरेस्ट ये नेगेटिव इम्पैक्ट ये निकल के आएगा कि अब उन्हें तो जॉब सिक्योरिटी मिल गई है कि हमें 60 ईयर्स तक इसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना है, परमानेंट एम्प्लॉय है.
हैं तो वो अपनी जॉब को लेके केयरलेस हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय डू नॉट परफॉर्म मोर इफिशियंटली एज दे हैव नो फियर ऑफ लूजिंग द जॉब. जॉब सिक्योरिटी मस्ट बी गिवन विद सम टर्म्स एंड कंडीशन. अब जॉब सिक्योरिटी तो दे पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ देंगे तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो केयरलेस नहीं होंगे. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन. इट मीन्स इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग स्पेशली व्हेन द डिसीजन आर रिलेटेड टू वर्कर्स. हमेशा जब भी वर्कर्स से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लिया जाए तो एम्प्लॉयज़ को भी उसका डिसीजन का पार्ट बनाया जाए. एम्प्लॉय फॉलो द डिसीजन मोर सिंसियरली व्हेन दीज आर टेकन इन कंसल्टेशन विद देम. क्योंकि जब भी हम एम्प्लॉयज़ के कंसल्टेशन से ही कोई डिसीजन उन्हीं के लिए लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से उसको फॉलो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ द टारगेट प्रोडक्शन इज फिक्स्ड बाय कंसल्टिंग एम्प्लॉय देन ही विल ट्राई टू अचीव द टारगेट मोर एफिशिएंटली. लास्ट वन इज ऑटोनॉमी और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट. इट मीन्स गिविंग मोर फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट. दिस एम्पावरमेंट डेवलप कॉन्फिडेंस इन द एम्प्लॉय. दे यूज पॉजिटिव इन स्किल्स टू प्रूव दैट दे आर परफॉर्मिंग टू द बेस्ट व्हेन दे गॉट फ्रीडम और व्हेन द फ्रीडम इज गिवन टू दैम. एम्प्लॉय एम्पावरमेंट करना चाहिए, उन्हें फ्रीडम देना चाहिए ताकि वो मोर इफिशिएंटली मोर इफेक्टिवली वर्क कर सके. So in this video we have read these topics. In the next video we will discuss next element of the directing, that is leadership and motivation.